Welcome, my dear students. With this session, we are going to start the topic of sequence and series. A very interesting topic and an important topic of algebra, sequence and series. Under sequence and series, we will be taking up arithmetic progression, that is also called AP in short, then geometric progression called GP in short, then harmonic progression, and lastly some mixed series and progressions, which includes AGP as well. So these topics will be covering up. We'll be starting with arithmetic progressions in today's session. Okay. So what is an arithmetic progression? Let us say there is a sequence 3, 7, 11, 15, 19 and so on. We'll be starting with very basic और फिर उसके बाद में फिर चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, तो let us एक एग्जाम्पल हमने लिया 3, 7, 11, 15, 19. So in this series 7 is 4 more than 3. है कि नहीं? 7 4 ज़्यादा है 3 से. Then 11 is 4 more than 7 and then 15 again is 4 more than 11. तो clearly यहाँ पे इस सीरीज में हमारा हर next term is 4 higher than the term previous, isn't it so? Previous term से 4 ज़्यादा है हर एक next term. So can we say that अगर हमने टर्म नंबर n लिया है, कोई एक टर्म लिया है, तो उससे जो नेक्स्ट टर्म होगा टर्म नंबर n+1 दैट विल बी 4 हाइयर. क्या ये बात कह सकते हैं? और अगर हम ऐसा कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट टर्म नंबर n+1 माइनस टर्म नंबर 1 दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज कॉल्ड फॉर सच अ सीरीज अ कॉमन डिफरेंस. It is called common difference because between each two consecutive terms there is a difference of 4. Between each two consecutive terms there is a difference of 4. And such a series जहाँ पे कि हमारा जो difference है that is constant, we are adding a particular value to get to next term each time. That series is called arithmetic progression. Arithmetic progression. Okay. और किसी भी arithmetic progression को define करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए. There are two elements which define a AP. कुछ भी और नहीं चाहिए. Only two elements defined a AP and those two elements are, first element is the first term जहां से कि हमारी AP start हो रही है, which is termed as A, and next element is common difference, which is termed as D, D for difference. For example, for a particular series A is equal to 5 and D is equal to 3. So common difference 3 का है. First term will be 5, next term will be 5 plus 3 which is equal to 8, then next will be 8 plus 3 11, then 14, then 17 and so on and so forth. So this is our AP जिसका कि first term A is equal to 5 और common difference हमारा 3 है. अब बात करते हैं nth term का. What is nth term of a sequence? nth term होता क्या है? वैसे तो nth term तो सबको पता ही है, बट स्टिल एक बार शॉर्ट में एक बेसिक सी बात को समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑड नंबर्स, सो ऑड नंबर्स हमारे किस फॉर्म में होता है? इफ वी राइट 2n+1. अब यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें एक ऑड नंबर ही मिलने वाला है. एंड अगर एक इंटीजर वैल्यू पुट करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट n इज इक्वल टू 2, सो 2n+1 विल बी इक्वल टू 5. इफ यू पुट n इज इक्वल टू 4, so 2n+1 will be equal to 9 for any value of n, for all integer value of n. If n is an integer, then definitely 2n+1 will be odd. Similarly, if we take 2n-1, अब 2n-1 में n की जगह कुछ भी पुट करोगे, if we put n is equal to 1, we will be getting 2-1 which is equal to 1. If you put n is equal to 2, we will be getting 2 into 2 4 -1 3. तो क्लियरली यहां से भी हमें सारे के सारे ऑड नंबर्स मिलेंगे, isn't it so?
अब 2n+1 से भी हमें n की वैल्यू पुट करने पे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, 2n-1 में भी n की वैल्यू पुट करने पे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। बट अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि विच ऑफ दीज 2n+1 and 2n-1 will represent nth term of the series of odd numbers, because odd numbers भी तो हमारे 2 के डिफरेंस पे आते हैं, यानी कि एक एपी फॉर्म करते हैं। तो ऑड नंबर्स से बनने वाली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होगा, 2n+1 होगा या 2n-1 होगा। सो nth टर्म इज दैट, जनरलाइज करके जब मैंने टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं तो दैट शुड फॉलो द पैटर्न कि जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इट शुड गिव अस द फर्स्ट टर्म, व्हेन वी आर पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इट शुड गिव अस द सेकंड टर्म। अगर ऐसा कर रहा है तब तो n टर्म का फॉर्मूला सही है, अदरवाइज गड़बड़ है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को चेक करें फॉर ऑड नंबर्स 2n+1 and 2n-1, इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1 तो 2n+1 में क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, 2n-1 में मिलेगा 1, विच इज द फर्स्ट ऑड नंबर। इफ यू पुट n इज इक्वल टू 2, रिजल्ट आएगा हमें 2n+1 के केस में 5 और 2n-1 के केस में आएगा 3, विच इज द सेकंड ऑड नंबर। तो क्लियरली 2n-1 is the nth odd number. This represents the nth odd number, nth odd number or nth term of the series of odd numbers. क्या ये बात क्लियर होता है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आता है? ठीक है, बेसिक सी बात है बट ये क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब अगर हम एक जनरल सीरीज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने सीरीज लिया 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन, और हमें चाहिए व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सबसे पहले जो एपी को डिफाइन करने वाले दो चीजें हैं वो क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 3 इन दिस केस एंड ईच टाइम वी आर एडिंग 5, तो दिस 5 इज द कॉमन डिफरेंस, तो डी इज इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में हमारा सिर्फ और सिर्फ ए है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज ओनली ए। सेकेंड टर्म में वी आर एडिंग डी फर्स्ट टाइम, तो ए प्लस डी हो जाएगा। थर्ड टर्म में वी आर एडिंग डी वंस अगेन, तो ए प्लस 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म विल बी ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो अगर हम nth टर्म की बात करेंगे तो फोर्थ टर्म में ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारा 3 टाइम्स डी एडअप हुआ है, थर्ड टर्म में 2 टाइम्स डी एडअप हुआ है, तो nth टर्म में डी n-1 टाइम्स एडअप होगा, तो nth टर्म विल बी a प्लस n-1 टाइम्स डी। दिस विल बी द जनरल टर्म, a प्लस n-1 टाइम्स डी। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। सो nth टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस n-1 टाइम्स डी। नाउ कमिंग टू एवरेज ऑफ एन एपी। एवरेज के टॉपिक में भी हमने इस बात को डिस्कस किया है, एवरेज ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो लेट अस से हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ये हमारा जा रहा है टिल 87। ओके, 3, 7, 11, 15, 19 टिल 87। और एवरेज क्या होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? सो फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एवरेज विल बी द मिडिल वैल्यू, जो एग्जैक्टली मिडिल में आएगी। ठीक है, तो मिडिल वैल्यू विल बी द एवरेज, मिडिल टर्म और मिडिल वैल्यू विल बी द एवरेज। अब निकालने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीक्वेंस को देखा 3, 7, 11, 15, 19, लेट अस अज्यूम कि दिस इज द nth टर्म, 87 इज द nth टर्म। तो अगर 87 हमारा nth टर्म है तो वी कैन राइट दैट 87 इज इक्वल टू, इस सीरीज में हमारा a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4, तो nth टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d, यानी कि दिस विल बी 3 प्लस n-1 टाइम्स 4 एंड दैट इज इक्वल टू 87। सो यहां से वैल्यू आ जाएगा n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 84। सो n-1 आ गया 21 n विल बी इक्वल टू 22, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज इज 22, है कि नहीं? टोटल टर्म्स आ जाएंगे हमारे 22। क्या बात क्लियर है? ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 22 आ रहे हैं तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? मिडिल टर्म कौन सा होगा? जब भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, जब भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, तो क्लियरली हमें मिडिल टर्म मिलेगा विच विल बी 1 यूनिक टर्म। यहां पे थर्ड टर्म हो जाएगा, 5 है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 5 प्लस 1 बाई 2 दैट विल बी टर्म नंबर 3 विच विल बी अवर एवरेज और मिडिल टर्म। यहीं पे अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, फॉर एग्जांपल हमने लिया 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, तो यहां पे हमें 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे। 6 है तो एक तो टर्म नंबर 3 होगा और एक होगा टर्म नंबर 3 प्लस 1 यानी टर्म नंबर 4। जनरलाइज कर दें तो फॉर अगर n हमारा ऑड है, इफ n इज ऑड, तो मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा n प्लस 1 बाई 2, और इफ n इज इवन,
इन दैट केस मिडिल टर्म होगा हमारा n/2 एंड n/2+1, ठीक है। तो n/2 में 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, n+1/2 नहीं है, तो n/2+1 दीज टू टर्म्स, इनका हम एवरेज लेंगे, दैट विल बी द मिडिल टर्म्स। तो दो आएंगे, इनका एवरेज लेंगे, वो हमारा एवरेज का वैल्यू होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो सिमिलरली हमारा प्रीवियस वाले केस में क्या हुआ, n=22 आया, यानी कि इवन आया है। सो इफ n इज इवन, तो हमारा टर्म नंबर 22/2 यानी कि टर्म नंबर 11 एंड टर्म नंबर 12, इन दोनों का जब एवरेज लेंगे तब हमें मिलेगा एवरेज वैल्यू। एक तो ये तरीका हो गया कि टर्म नंबर 11 और टर्म नंबर 12 का हम एवरेज ले लें तो हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। बट बेटर अप्रोच क्या होगा, बिकॉज इसके लिए हमें टर्म नंबर 11 निकालना पड़ेगा, टर्म नंबर 12 निकालना पड़ेगा, अननेसेसरी अवॉइड करना पड़ेगा जिसकी कोई जरूरत है नहीं। तो कभी भी हम, अगर हमें किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज लेना है, तो हम इक्वी डिस्टेंट, एग्जैक्टली मिडिल से इक्वी डिस्टेंट दो टर्म्स का या एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट दो टर्म्स का अगर हम वैल्यूज का सम लेते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं, दैट विल ऑल्सो बी द एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एपी। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अगर हम फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट टर्म 87, इन दोनों का एवरेज ले लें, तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एपी। तो एवरेज विल बी इक्वल टू 3 + 87 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 45। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट टर्म लें और स्टार्ट से सेकंड टर्म, और सेकंड लास्ट टर्म होगा 84, तो 7, एक सेकंड 83 होगा लास्ट टर्म, 84 नहीं होगा, ठीक है। तो 7 एंड 83 4 है ना कॉमन डिफरेंस, तो 7 + 83/2, यहां से भी हमें एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या है बात क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से इजीली हम एवरेज अपने किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का निकाल सकते हैं। और अगर एवरेज निकालना सीख गए तो फिर सम भी निकाल लेंगे, सम ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर n टर्म्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स विच विल बी इक्वल टू n एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई एवरेज, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारा n है, एवरेज हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 n into a plus l by 2, और we can say that average will be equal to n upon 2, और फर्स्ट टर्म क्या है, a है, लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म है, लास्ट टर्म तो टर्म नंबर n है, तो we can write that n by 2 into a plus nth टर्म हो जाएगा a plus n minus 1 टाइम्स d, और जिससे कि फॉर्मूला हमारा बन जाता है n टर्म्स का सम विल बी इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 टाइम्स d। Is that part clear? This will be formula फॉर सम ऑफ n टर्म्स। क्या है बात क्लियर है? ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का मामला आ जाएगा हमारा n/2 into 2a plus n-1 टाइम्स d। इज दैट क्लियर? ओके। अब एक दो छोटी सी बातों को और देख लेते हैं, उसके बाद में डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब किसी अरिथमेटिक सीरीज में कई बार होगा हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा फॉर नंबर ऑफ टर्म्स कि देयर आर 3 टर्म्स, देयर आर 4 टर्म्स, देयर आर 5 टर्म्स, और हमें टर्म्स को एज्यूम करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या बेटर रहेगा हमारे लिए, व्हेन वी हैव टू एज्यूम terms of a AP, assuming terms of an arithmetic progression. For example, we have to assume 3 terms. So if we have to assume 3 terms, we can assume that the first term is a minus d, second is a, third is a plus d. अगर हमें 3 टर्म्स एज्यूम करने हैं तो वी कैन एज्यूम a माइनस डी, a प्लस डी। पर्पस क्या होगा इसका कि फॉर एग्जांपल हमें सम गिवन है, सम इज इक्वल टू 18, सम ऑफ दोस 3 टर्म्स इज इक्वल टू 18। तो अगर सम हमारा 18 है, जैसे ही तुम इन 3 वैल्यूज को ऐड करोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी को, सम क्या आ जाएगा हमारा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तो d से d कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारा क्या, सिर्फ 3a बचा, और 3a इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 6। बट ध्यान ये देना है कि इस बार जो हमने एजम्पशन लिया है, यहाँ पे a हमारा मिडिल टर्म है, a इज नॉट द फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म नहीं है। तो इस केस में हमारा फर्स्ट टर्म हमने क्या माना है, फर्स्ट टर्म है a माइनस डी और कॉमन डिफरेंस है d हमारा। सो व्हेन वी आर एज्यूमिंग a माइनस डी, a एंड a प्लस डी एज द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो द फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी और कॉमन डिफरेंस है d। तो अगर क्वेश्चन लास्ट में हमसे फर्स्ट टर्म पूछता है तो हमें a माइनस डी निकालना है, a नहीं निकालना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा तभी हम एज्यूम करेंगे जबकि हमें सम गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन हो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन हो, क्योंकि सम से ही हमने a की वैल्यू निकाल ली, यानी कि मिडिल टर्म की वैल्यू निकाल ली। बट अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना रह गया, उसके लिए प्रोडक्ट या फिर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। वो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये बातें बेटर समझ में आएंगी। क्लियर? ओके, ठीक है। चलो, अब अगर हमें 4 टर्म्स एज्यूम करने हैं, ऐसे किसी केस में अगर हमें 4 टर्म्स एज्यूम करने हैं, so we can assume those terms as a minus 3d, a minus d
ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। अगेन अजम्पशन का रीजन ये है, ये एज्यूम करने का रीजन ये है कि यहाँ पे जब हम सारे के सारे चार टर्म्स को ऐड करेंगे सो डी वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें सम मिलेगा 4a। तो सम आ जाएगा, सम ऑफ 4 टर्म्स विल बी इक्वल टू 4a। अगेन फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, टर्म नंबर 1 इज नॉट a, it is a minus 3d in this case, और common difference is 2d because we are adding 2d each time, तो common difference d नहीं होगा, इस केस में 2d है। and if we are assuming 5 terms, we can assume those 5 terms as a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d। so ये 5 terms assume कर लिए, यहाँ पे sum हमारा आ जाएगा 5a, a is the middle term and term number 1 is a minus 2d and common difference is d। सो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको कि ध्यान में रखना है ताकि क्वेश्चंस हमारा इजीली हम सॉल्व कर सकें और साथ में कहीं पे कंफ्यूजन भी नहीं हो कि कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, किसी केस में 2d है किसी में d है, वो तो देख के समझ में आ जाएगा, बट देखना जरूर, ऑब्जर्व करना है, इस चीज को फोकस जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा एक छोटी सी चीज मिस हो गई, उसको पहले कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं। देखो लेट अस से हमें एक सीरीज गिवन है 4, 7, 10, 13, 73 एंड क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज क्या होगा और nth टर्म क्या होगा। ओके सो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म है 4 और nth टर्म हमारा गिवन है 73, तो nth टर्म विल बी इक्वल टू 73 विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और d यहाँ पे कितना आ रहा है 3 का आ रहा है, 3 है, 3 इज कॉमन डिफरेंस, सो n माइनस 1 इंटू 3, सो यहाँ से 73 माइनस 4 विल बी 69, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 69, 3 से जाकर 23 टाइम्स, तो n विल बी इक्वल टू 24, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारा आ गया 24। इस चीज को हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, nth टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है, दिस विल बी नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज। और ये फॉर्मूले से ही आता है nth टर्म का, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, तो nth टर्म्स में से a सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो tn माइनस a विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d, और इसके बाद तो क्लियर ही है। ओके सो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, और ये जो वैल्यू आया है उसमें 1 ऐड कर दोगे लास्ट में। क्या ये बात कह रहे हैं, ठीक है। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 83 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस इज प्लस 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज n विल बी इक्वल टू लास्ट टर्म 83 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 विच विल बी 78 बाई 3 प्लस 1, 26 प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 27। इजी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में पॉज करके पहले खुद से अपने एंड पे सॉल्व करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया इजीली 27 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें सम चाहिए, और फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 4, a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 5 प्लस 5, फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस आ रहा है प्लस 5, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग AP क्या होगा। एक तरीका है कि डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दें, सम ऑफ n टर्म्स या सम ऑफ 20 टर्म्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू n बाई 2 यानी 20 बाई 2 इंटू 2a 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 टाइम्स 5 टाइम्स d, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 8 प्लस 95, तो 95 प्लस 8 इज 103 इंटू 10, तो 1030 विल बी द सम, 1030 हमारा सम आ जाएगा, है कि नहीं। एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड मेथड हो सकता है कि हम एवरेज निकाल लें इस सीरीज का, हम इस सीरीज का एवरेज निकाल लें और फिर एवरेज निकाल के इसको सॉल्व करें। अगर हम एवरेज निकाल के सॉल्व करते हैं तो इस सीरीज का एवरेज हमारा क्या आने वाला है, एवरेज यानी कि 20 टर्म्स है, ध्यान से समझना बात को। एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो या तो हम एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म तो पता ही है हमको a इज इक्वल टू 4, लास्ट टर्म क्या आएगा 20 टर्म, 20 टर्म में क्या होगा 19 टाइम्स d ऐड होगा, 19 टाइम्स d ऐड होगा, तो यानी कि 4 प्लस 95 दैट विल बी 99, तो 4 प्लस 99 एवरेज क्या आ जाएगा,
एवरेज इन दिस केस विल बी इक्वल टू 4 + 99/2, यानी कि 103/2 ये एवरेज आ गया, 103/2 नॉट बाई 20, 103/2 ये हमारा एवरेज की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में सम चाहिए, तो सम क्या होगा, सम हो जाएगा हमारा n इंटू एवरेज, यानी 20 इंटू 103/2, हेंस 1030। या फिर इसी बात को मैसेज हो सकते हैं कि मिडिल टर्म निकाल लें। अब एग्जैक्टली मिडिल टर्म निकालेंगे तो 1 + 20/2 टर्म नंबर क्या आएगा, 1 + 20/2, सो दैट विल बी टर्म नंबर 21/2 एंड टर्म नंबर 10.5। अब ऐसा 10.5 कोई टर्म नहीं होता है, बट निकाल तो सकते हैं, कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। तो एवरेज यहाँ से आ जाएगा टर्म नंबर 10.5, यानी कि फर्स्ट टर्म विच इज 4 + 10.5 - n - 1, यानी कि 9.5 × 5। ठीक है, तो ये एवरेज हमारा आ जाएगा 9 × 5 45 + 2.5 47.5 + 4 51.5, और 51.5 में 20 मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर हमें सम की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड nth टर्म, नाइन्थ टर्म, टर्म नंबर 3 एंड टर्म नंबर 9 का जो सम आ रहा है ऑफ एन अरिथमेटिक दैट इज इक्वल टू 8। सो टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। फर्स्ट 11 टर्म्स का सम चाहिए प्रोग्रेशन का। सो या तो हम एवरेज निकाल लें और एवरेज को मल्टीप्लाई कर दे 11 से, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बट 11 टर्म्स है तो एवरेज कौन सा टर्म होगा, टर्म नंबर 1 + 11/2, यानी कि टर्म नंबर 6 विल बी अवर एवरेज, यही तो एवरेज आएगा। और टर्म नंबर 3 और टर्म नंबर 9 के एग्जैक्टली मिडिल में आता है टर्म नंबर 6, तो एवरेज हम टर्म नंबर 3 + टर्म नंबर 9 का अगर एवरेज निकाल लें तो वही हमारा टर्म नंबर 6 का वैल्यू होगा। तो टर्म नंबर 6 विल बी इक्वल टू टर्म नंबर 3 + टर्म नंबर 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 4। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो टर्म नंबर 3 हमारा क्या होगा, दैट विल बी a + 2d। टर्म नंबर 9 क्या होगा, a + 8d। दोनों को ऐड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा 2a + 10d एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से a + 5d आ जाएगा हमारा क्या, 4। और a + 5d क्या होता है, दिस इज नथिंग बट टर्म नंबर 6 ओनली। ठीक है, तो टर्म नंबर 6 हमारा आ गया 4, और सम चाहिए 11 टर्म्स का। सम ऑफ 11 टर्म्स विल बी इक्वल टू 11 इंटू एवरेज ऑफ 11 टर्म्स विच इज टर्म नंबर 6 ओनली। तो 11 × 4, आंसर विल बी 44 ओनली, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। और सीरीज हमारा क्या है, -64 -66 -68 -70, यानी कि एक डिक्रीजिंग एपी है। हर एक जो नेक्स्ट टर्म है वो छोटा है पिछले वाले टर्म से, इजंट इट सो? कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, -2, जब 2 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, या फिर ऐड क्या कर रहे हो तुम, -2 अगर ऐड कर रहे हो तो यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, -2 है। फर्स्ट टर्म क्या है, -64 है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी लास्ट टर्म विच इज -100 माइनस फर्स्ट टर्म, और ध्यान रखना है यहाँ पे नेगेटिव साइन का, -64 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस विच इज -2 + 1। तो -100 + 64 विल बी -36, -36 बाय -2 + 1, दिस विल बी इक्वल टू 18, और 18 + 1 आ जाएगा 19, यानी नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा 19। सो सम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इंटू एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म चाहिए, दोनों तो गिवन ही है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट मेथड होगा सम निकालने का, उससे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एवरेज तो पता ही है, बस n निकालने की जरूरत थी। सो n इज 19, और एवरेज आ जाएगा हमारा कितना, -64 -100 दैट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दैट विल बी -82 × 19। ओके, 82 × 19 क्या होगा, 82 × 20 कर लो, और उसमें से 82 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 82 × 20 आ जाएगा 1640 -82। तो 1600 में से 42 सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 1558, और नेगेटिव साइन तो बाहर था ही, दिस विल बी -1558। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, -1558। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन एज फॉलोज। और सीरीज हमें क्या गिवन है, 168 157 146 एंड 135 एंड सो ऑन, ये हमारी सीरीज है। तो जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, एक सेकेंड, हेलो, ठीक है, हाँ, तो जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 168 157 146 135 एंड सो ऑन, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म तो 168 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, हर बार 11 सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा है -11 हो रहा है।
Another series is created by taking first term, fourth term, seventh term and 10th term and so on of the given AP. So find the 9th term of the new series thus formed. Pause the video. अच्छा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है बट बढ़िया है. पॉज करके वीडियो एक बार थोड़ा टाइम दो, क्वेश्चन को समझो और सॉल्व करो और आंसर निकालो इसका. ठीक है, तो एक दूसरी सीरीज हम फॉर्म कर रहे हैं इसी सेम सीरीज से, बट क्या कर रहे हैं हम उस दूसरी सीरीज में वी आर टेकिंग फर्स्ट टर्म, देन फोर्थ टर्म ले रहे हैं, फिर सेवेंथ टर्म लेंगे, फिर 10th टर्म लेंगे एंड सो ऑन. ठीक है, यानी कि पहली वाली सीरीज का पहला टर्म लेंगे, फिर फोर्थ लेंगे, फिर सेवेंथ लेंगे, फिर 10th लेंगे, नेक्स्ट क्या होगा 13th लेंगे, 16th लेंगे, 19th लेंगे, 22nd लेंगे और लास्ट में लेंगे 25th. 9 टर्म हो गया ना, 1 2 3 4. हाँ, बट अगर हमें ऐसा कोई बड़ा नंबर दिया होता तो यहाँ पे एक तरह से तुम देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे कि हम टर्म नंबर जो ले रहे हैं ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. 1 4 7 10 13 16 19 22. तो जो हमारा नया जो सीरीज बन रहा है न्यू सीरीज का, बिकॉज दिस इज 9th टर्म ऑफ द न्यू सीरीज. ठीक है, इसको टी डैश कर लेते हैं. 9th टर्म ऑफ द न्यू सीरीज. तो 9th टर्म ऑफ द न्यू सीरीज क्या होगा, पहला टर्म क्या है नई सीरीज का, टर्म नंबर 1 ऑफ द ओल्ड सीरीज. ठीक है, तो टर्म नंबर 1 ऑफ द ओल्ड सीरीज, तो ए तो आ गया 1 प्लस और 8 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1 से 4 पे गया यानी कि 3 का कॉमन डिफरेंस है. सो 8 इंटू 3 यानी कि टर्म नंबर 25 ऑफ द ओल्ड सीरीज दैट विल बी द 9th टर्म ऑफ द न्यू सीरीज दस फॉर्म्ड. क्या ये बात क्लियर है, इज दैट पार्ट क्लियर? तो हमें निकालना है कि ओल्ड सीरीज का, ओरिजिनल सीरीज का टर्म नंबर 25 क्या होगा, 25 टर्म क्या होगा. तो टर्म नंबर 25 विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज 168 और फिर 24 टाइम्स हम डी ऐड करेंगे तो प्लस 24 इंटू डी और डी है -11. तो 168 माइनस 264 ओके. एक काम ये कर सकते हो, 264 में से 168 सब्ट्रैक्ट करो, बाद में नेगेटिव साइन ऐड कर दोगे तो आएगा रिजल्ट -96. ऑप्शन डी. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. ध्यान ये रखना है कि हम 264 में से 168 सब्ट्रैक्ट करके फिर नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, यानी कि 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा. 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करने के चक्कर में पड़ोगे तो 4 लगा के ऑप्शन सी मार्क कर सकते हो, ऐसी गलती हो सकती है. ठीक है, बट ध्यान नहीं रखना 168 छोटा वैल्यू है, 264 बड़ा वैल्यू है. ठीक है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, बाद में नेगेटिव साइन तो बाहर लगा ही दोगे, तो आंसर आ जाएगा -96. इज दैट क्लियर? जब भी नेगेटिव वैल्यूज के बीच में सब्ट्रैक्शन करना हो या फिर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करो तो हमेशा ये चीज़ें कॉशियस रहना है, अदरवाइज ये छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी और पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है, ओके. तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज सेइंग व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 एंड आर नॉट डिविजिबल बाय 2. तो कंडीशन ये है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 1000, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 बट आर नॉट डिविजिबल बाय 2. तो स्मॉलेस्ट सच नंबर विल बी 5 ओनली, है कि नहीं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 5 से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट आता 10, बट 10 नहीं चाहिए बिकॉज नॉट डिविजिबल बाय 2. तो ओनली डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 2. तो 5 के बाद में नेक्स्ट आएगा 15, देन आएगा 25, देन 35, 45 एंड सो ऑन टिल 995. लास्ट टर्म आएगा 995 और कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा 10 का. नहीं, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 10 का. ओके, ठीक है. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे, लास्ट टर्म 995 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 5 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस दैट इज 10 प्लस 1. So that will be 990 by 10. So 99 plus 1 100. So number of terms will be equal to 100. Sum will be equal to number of terms into average and into average. और एवरेज तो क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो एवरेज तो पता ही है. सो 100 इंटू 5 प्लस 995 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल बी 5 प्लस 995 दैट विल 1000 by 2 यानी 500. तो 500 इंटू 100 विल बी 50,000. So answer to this question will be 50,000. Option D will be the answer. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 50,000. क्लियर? ठीक है. अदरवाइज ये भी कर सकते थे, फॉर्मूला अप्लाई कर देते, क्योंकि हमें ए पता है, डी पता है, तो वैसे भी कर सकते हो, बट एन तो तब भी पता करना पड़ेगा. और जब हमें सीधे से पता है तो फिर डायरेक्टली एन इंटू एवरेज करेंगे, वो बेस्ट मेथड है, उसके अलावा कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इज दैट क्लियर? ओके.
सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी बातें मैं डिस्कस की समझ में आई होंगी। कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। और इतना ही रखते हैं इस सेशन में। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। और सेशन पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना है। ओके, बाय बाय।